केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर देश भर में सीएए लागू कर दिया है, जिसके बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर कई सवाल दाग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने सीएए लागू होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि वो सीएए की बात करते रहेंगे, तुम इलेक्टोरल बॉन्ड पर अड़े रहना। वहीं विपक्षी नेता भी जमकर सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। सीएए लागू होने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मैं इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत मानता हूं। मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। The same stand that I took in Parliament, both when they introduced the bill and when the debate on the bill happened in the Lok Sabha. And I can tell you, I consider this morally and constitutionally wrong. Because the basis on which partition occurred was one country saying that religion is the basis of their nationhood, and they went off and created Pakistan. And Mahatma Gandhi onwards, all our other leaders, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Dr. Ambedkar said, no, religion will not be the basis of our nationhood. Our nationhood is about, our struggle for freedom was for everyone, and the constitution and the nation we create will be for everyone. On that basis, we created a constitution which you cannot discriminate against people because of their religion or their caste, their color, their language, whatever. If you're a citizen of India, you have the same rights. This is the first time that into the principle of citizenship, you are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. The rule is very simple. Anyone who has come to this country before the 31st of December 2014, who has sought refuge in this country from a neighboring country where they fear persecution, is eligible for citizenship. That's all that needed to be in the law. There was no need to specify which religions are eligible and thereby exclude people of only one religion. There is a pure communal message, a dog whistle as they say, a whistle to some people saying your communal agenda is what we are pursuing. That is unacceptable to us. It is clearly timed 4 years after the passage of the bill, just for their benefit in these elections. And I will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law beyond any shadow of a doubt. It's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion into our citizenship and into our nation's life. This is wrong, and we certainly should not tolerate it in the interest of our country. वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि वो इसे 3.5 साल से अधिक समय के बाद लाए हैं। वो पहले ही निर्णय ले सकते थे, अब चुनाव का समय है। Very long time of more than 3.5 years they have notified, and they would have taken a decision earlier itself. Who said no? Now at the time of elections, where there will be a lot of communal issues may start. We don't want anything to start. We want a peaceful country. We want all sections of the society to be together. So this is not the right time. They could have taken earlier whatever the stand they called, because they are the absolute majority. The timing of taking a decision is completely wrong, number one. Number two, that was not needed for this country, according to me. वही शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। एक खेल करते रहते ये लोग, बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, जमा हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला, नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। वहीं इन सब के बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीए का नियम बन गया है, इसके लिए हम अपने भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीएए
देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है, जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि भारत सरकार ने सीएए कानून लागू किया है। मैं इस कानून का स्वागत करता हूं। ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। भारत सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहां पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और न ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं और मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे। आपको बता दें, सीएए के अमल में आने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। इससे मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को फायदा होगा, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।